Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, thank you very much for joining me today's session. My name is Hamid Asghar, and on behalf of Institute of Freelancing and Peer Finishing School, I welcome you all. So let's get started our today's session. There are plenty of things which we have done so far, and that includes yesterday तक हमने eraser, quick eraser tool तक किया था, and then उसके बाद paint bucket tool and gradient tool. Gradient tool is something which we have not discussed so far. So let me create a simple new layer here. So for you to understand, let's just say मैंने create किया, okay, and gradient tool से जाके मैं जैसे ही gradient tool को pick करूँगा, there are multiple things which pops up. ठीक है, सबसे पहले इसकी properties को आपने जाके check करना है. The first is कि ये जो gradient है इसके ऊपर एक click करेंगे तो ये gradient editor की window open हो जाएगी. इसमें different type of gradients आपके पास preset मौजूद हैं, इनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक योर ओन, दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन वेरी इजीली क्रिएट. लेट्स सपोज जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, द फर्स्ट वन इज फ्रॉम रेड टू वाइट. सो रेड इसने कहां से पिक किया? दिस दैट इज योर सिलेक्टेड कलर एंड दैट इज द बैकग्राउंड कलर. ये इससे बेसिकली इसने पिक किया. सो आइडियली स्पीकिंग, लेट्स सपोज अगर आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रेड, लेट्स सपोज लेट मी पिक अप येलो, and for the background let me pick up red. So now let's click on this and have a look at this. Automatically from yellow to red ये gradient color आप इस पे click करें, that is something the details which is showing, and press OK. Now the new layer has been selected. आप इसके ऊपर इस corner से लेकर इस corner तक इसको gradient apply कर सकते हैं. Further top से बिल्कुल bottom तक apply कर सकते हैं, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, जिस भी शेप में आप अप्लाई करना चाहें, चॉइस इज योर्स. ठीक है. फर्दर इसके अलावा इफ यू आर इंटरेस्टेड, लेट्स गो फॉर दिस वन दैट इज far more important, and that is foreground to transparency. Correct? Foreground to transparency means the first would be foreground and that is yellow. Okay. To transparency means yellow से रेड की तरफ नहीं बल्कि येलो से ट्रांसपेरेंसी की तरफ. सो लेट मी ऑफ दिस लेयर या हाइड दिस लेयर एंड क्रिएट अ न्यू लेयर फर्स्ट, and let's apply that yellow to transparency here while clicking upon here top से bottom तक, and have a look at this. करेक्ट. सो इस तरह की छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे. सो लेट्स मी अनडू दिस, और इसको मैं बॉटम से लेकर और टॉप तक के लिए अप्लाई करता हूँ. ठीक है. एंड देन फर्दर व्हाट यू कैन डू इज के इसके साथ जो मर्जी आप प्ले करना चाहें. फॉर एग्जांपल कलर बर्न से देखें ये इसके क्या क्या एक्शंस करना शुरू कर दिए, लीनियर बर्न से एंड मल्टीप्लाई से, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स जो कि आहिस्ता आहिस्ता आप करेंगे, इसके साथ साथ प्ले करेंगे, एंड यू विल फाइंड आउट द अमेजिंग रिजल्ट्स. करेक्ट. सो दिस इज समथिंग यू मस्ट हैव टू डू इट एट योरसेल्फ. फर्दर इसमें देयर आर सम ऑप्शंस लाइक, for example, the first one is the linear gradient, linear, the center, the radial, the second is, sorry, radial. The third one is conical, sorry, angle gradient. The fourth one is probably reflected, means ऊपर का reflection नीचे बिल्कुल, and the last one is the diamond gradient. Let's suppose हम center one हमने अभी linear apply किया था, अब हम इसको ग्रेडियल अप्लाई कर देते हैं, बट इनटू द न्यू लेयर्स. राइट, मैं इसको करता हूँ ऑफ, एंड लेट्स अप्लाई, चूंकि सेंटर से है, सो लेट पिक अप दी सेंटर, और सेंटर से ये देखें, सेंटर से इट स्टार्ट्स, दैट्स द येलो, और इसके आउटर साइड इज एक्चुअली ग्रेडियंट. अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब होगी जब आप इसको पिक करके इसको बॉटम लेयर से नीचे ले जाएंगे. लेकिन यस एग्जैक्टली, चूंकि इसका ये सारा कलर वाइट है, सो इट वोंट बी apply. So let me bring something which is transparent. Yeah, let me open a new logo. Let's suppose मैं जाके Institute of Freelancing से मैं transparent logo एक लेता हूँ, और hold on a second please. Where is, just a second, let me open up the Institute. Okay, here we go. I'm pretty sure आपको मेरी screen नजर आ रही होगी. Okay, that is the white background, that one is the transparent. Let's suppose, no, it is also not transparent. Okay, let me open it up again, and where is
this one is transparent. Okay, let's suppose इसमें मैं ये gradient apply करता हूँ the same. Already हमने selected किया हुआ है, just press the green and create a new layer, लेकिन that layer has to be under this logo. अब आप जब इसके ऊपर ये apply करेंगे, so let's see what is the results and have a look at this. करेक्ट. सो लेट्स सपोज इसके अलावा अगर आप ब्लैक से वाइट अप्लाई करते हैं एंड इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स सपोज दिस वन, सो लेट मी क्रिएट अ न्यू लेयर फर्स्ट सो दैट के सारे एक्सपेरिमेंट्स हम नई नई लेयर्स के ऊपर करते जाएं. इस तरफ इस तरफ इस तरफ किसी भी आप शेप में लेके अप्लाई करें, इस सेंटर से आउटर साइड लेफ्ट राइट बॉटम जिस तरफ भी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन. Okay, the next one is the reflected gradient. Reflected gradient के लिए let me create a new layer and let me off this and off this. And gradient क्या करता है? Reflected gradient top से bottom तक is this and transparency is normal. And why it's not coming? Anyway, या आप इसके अलावा कोई भी इस तरह मल्टी कलर आप पिक करें और उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें. दिस इज समथिंग जो जो भी आप कलर अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा. द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस केस इज कि लेट सपोज आप इस पर क्लिक करते हैं एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड कि मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस कलर आई एम इंटरेस्टेड कि मैं बिल्कुल इसको येलो कलर रखूं. सो हाउ कैन यू डू इट? वेरी सिंपली, ग्रेडियंट में लास्ट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, लेट सपोज दिस या ये वाला जो इसको मैं क्लिक करता हूँ एंड दैट इज इट्स कलर. राइट, मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ एंड लेट मूव फ्रॉम हियर टू लेट सपोज येलो एंड प्रेस ओके एंड प्रेस ओके एंड नाउ द कलर हैज बीन चूजन. सो लेट मी अगेन क्रिएट अ न्यू लेयर और टॉप से लेकर और यहाँ तक मैं ये अप्लाई करूँ. ठीक है. सो दिस इज समथिंग वेरी इजीली, इस कलर से लेकर और इस कलर तक. दिस इज समथिंग बिल्कुल सिंपल. एक नई नई लेयर्स बनाते जाएं और उसके ऊपर ये अप्लाई करते जाएं. The further is next last command is इसी में आप डायमंड पिक करें एंड इसी को पिक करते हुए आप सेंटर से इधर पिक करें तो दिस इज somehow like a kind of diamond shape जो कि क्रिएट हो जाएगी. The idea is कि let's suppose not exactly this, आप इस तरह की कोई चीज क्रिएट करना चाहें, that is something very easily you can create. Thank you Zareen, thanks a lot. Okay, and maybe something like कि आप let's suppose इस लेयर के ऊपर यहाँ से इधर तक अप्लाई करते हैं एंड इसी के ऊपर या लेट्स क्रिएट अ न्यू लेयर और क्रिएट न्यू लेयर करने के बाद एक यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं एंड एक यहाँ पे अप्लाई करते जाएं. लेकिन क्योंकि इसका बैकग्राउंड इज येलो सो प्रोबेबली हर बार येलो उसके ऊपर विजिबल आता जाएगा. सो हाउ कैन यू मल्टीप्लाई इट लाइक दिस विद ये छोटी छोटी एप्लीकेशंस को आप यूटिलाइज करेंगे एंड हैव अ लुक एट दिस. एक से एक नई से नई शेप नई से नई चीज़ें आपके ऊपर क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी. ठीक है ना. ये दोनों अब विजिबल हैं with the darker color with the light tone means instead of dark ये light की तरफ ले जाएगा और screen means बिल्कुल I mean not visible लेकिन overlay is something very interesting. इसके अलावा the one is luminosity जो कि last one. अब I would request कि आप ये सारे one by one करके अप्लाई करें. ओके, इतनी लंबी लिस्ट है. आई जस्ट डू नॉट वांट कि मैं इसके ऊपर टाइम जाया करूं. इट इज ऑल नाउ योर चॉइस कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं. सो दैट इज द perfect example of gradient tool. So let's move to the next and that is let's suppose मैं इसको सबको ऑफ कर देता हूँ एंड दैट इज द इंस्टीट्यूट का लोगो. इंस्टीट्यूट के लोगो अगर आप ऑलरेडी है आपके पास फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पस यू कैन डू इट. इफ यू डू नॉट हैव दिस लोगो तो मैं आपको पीएनजी फॉरवर्ड कर दूंगा. I'm sorry for this confusion. I got disconnected. I'm sorry, I got disconnected. Now I'm back. So let me open up this window and please confirm. Can you see my screen? Can you see my screen now? Perfect. Thanks. Sorry for this confusion. Yeah, this is not in my hands. The internet disconnectivity and things like this. Okay. Thanks a lot. Chalaji, let's move to our next topic, and that is after this gradient is. Blur tool, sharpen tool, and smudge tool. Very interesting. Actually, as you all know, the blur tool is for what? For pictures. So
Let me open up a picture. Okay, that is the picture जिसके ऊपर we are trying कि हम इसको experiment करें. लेकिन did you have any idea right now that this document has been opened at what percentage? Actually, it is right now 100% open, or at what level it is open? Chat box में कोई confirm करेगा that how can you make it sure? Anyone? Whenever you open up any of the picture, any of the document, how you make it sure that this is 100% what the document size is which is open right now? Okay, so that means क्योंकि मैंने अभी तक बताया नहीं था आपको, so I'm pretty sure I was expecting कि ये आपके लिए comparatively मुश्किल होगा. So listen my dear student, जब भी कोई document आप open करेंगे, that is the Institute of Freelancing logo.png is the file name. Okay, .png is the format, and this document has been opened right now at the rate 16.7% of actual. That means okay, we can zoom it in to 100%, right? So that is now 100% that's been open, correct? So actually this document is like this, right? So जब भी कभी आपको करेक्ट सो जब भी कभी आपको ऐसी सिचुएशन पेश आए तो मेक इट पॉसिबल कि आपके डॉक्यूमेंट शुड बी 100% ओपन. सो नाउ अगर आप मैं आपसे पूछूं कि दिस डॉक्यूमेंट इज ओपन एट व्हाट परसेंट, सो यू कैन मेक इट श्योर एट द रेट 66.7%. So that means कि control plus there are two keys which you can apply on this, और इन दो keys को के साथ हम yes zoom in and zoom out कर सकते हैं, correct? Further you know that कि layers की options में कितनी layers हैं and things like this. Actually, coming back to the basic tool which we were discussing, and that is actually the blur tool. Blur tools usually pictures के साथ इस्तेमाल होता है. Let's suppose I'm interested कि मैं इसका sorry undo brush size को थोड़ा सा छोटा करूँ. This is 442 pixels which is way too big. Okay, I'm interested कि मैं इसको almost 100 तक ले जाऊँ, and let me blur the eyes of this kid to some extent. Have a look at this. Simple click करते जाएं. Now this is real one, this is blurred one. Okay, let's suppose if at any moment of time आपकी picture और background की picture is different, so you're interested कि background को थोड़ा सा आप कर दें blur. So this is the handy tool which you can very easily create. No, he is not my son, he is my nephew. Okay जी, so the second tool is आप इसी पे क्लिक करें, and that is the sharpen tool. Sharpen tool क्या करता है? That is quite obvious, as you all know. जिस तरह blur कर देता है, इस तरह picture को sharpen कर देता है. So again उसके लिए what we can do is कि instead of 13%, ये बहुत छोटा है इसका circle, so let me open the size of the brush to approximately 100%, right? So now this is almost 100%, and let me click on this and have a look at this, correct? और थोड़ा सा इसको भी sharpen कर दें, थोड़ा सा इसको sharpen कर दें. As we have already made this blur, so probably that's a mistake usually you should not do. ideally speaking ideally speaking what happened is कि आप इस तरह की कोई भी picture लेते हैं, let's go into the layers first, create a copy of the layer, and then make the experiment, correct? So that is the mandatory thing you always have to remember कि आपके पास original save रहे और उसके अंदर आप different experiments कर सकें. ठीक है ना जी? तो this is sharpen tool. Let me open up this document again from, let's suppose, file and open, and um, I have to find it out from where I can. Okay, and that's the picture. Okay, but I have to close it up first, and then I have to open it up again. That's the picture. Okay, so let control plus, and that is now 100%. And first you have to make a copy of this so that के difference should be clear. अब मैं इसको करूँगा एक को sharpen, correct? The sharpen key has been selected. Okay, and strength, by the way, you must have to keep in mind कि अगर इसको 100% करेंगे तो it would act like exactly one goal. Okay, and usually 100% के ऊपर आप एक से दो क्लिक आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है.
नाउ मैं इस लेयर को ऑफ करूंगा तो आपको एक्चुअल में और इस वाली में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा वाजिया क्लैरिटी से समझ आना शुरू हो जाएगी। लेट मी जूम इन मोर एंड लेट मी ऑफ दिस एंड ऑन दिस। आई एम प्रीटी श्योर कि अब आपको विजिबिलिटी इसकी नजर आ रही होगी। प्लीज कंफर्म, इज इट ओके? अब आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? Okay, perfect. So, perfect. So this is something you must have to remember कि सबसे पहले ये टूल क्या करता है, शॉर्पन टूल। ये किसी भी ऑब्जेक्ट, लेट सपोज ये आपने सेलेक्ट किया एंड लेयर को ऑन किया, और लेट सपोज हम किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम थोड़ा सा क्लैरिटी से देखना चाहते हैं तो हैव अ लुक एट दिस। ठीक है जी, अब मैं जाके इस लेयर को ऑन और ऑफ करूंगा एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस कि कितना ज्यादा डिफरेंस पड़ गया। ठीक है जी, सो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। एंड ब्लर, एज यू नो, ब्लर इज ब्लर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग टूल इज द स्मज टूल। स्मज क्या करता है? वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी ओपन अप दिस डॉक्यूमेंट एंड स्मज इसे क्या करता है? स्मज करता है शरारत। वो कैसे कि लेट सपोज मैं इसकी नोजी को पकड़ के थोड़ा सा यूं कर देता हूं, ओके, एंड समथिंग लाइक दिस, एंड इस कान को मैं पकड़ के जस्ट थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ, और फ्रॉम हियर लेट सपोज लाइक दिस, ओके, एंड लेट सपोज इसके कान को पकड़ के मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, एंड यहाँ से भी इसको पकड़ के थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, सो दिस इज समथिंग a very bad thing to do with the pictures, but you can make experiments with your own pictures like this. Correct? So don't you think it is amazing? Okay. So I'm sorry to this kid that I chosen this picture for the experiment, whereas किसी के साथ भी ऐसे वैसे without his approval आपको ऐसे नहीं करना चाहिए. But this is something which you can experiment with any of your friend, family या किसी के साथ. ठीक है, सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड आई जस्ट वांट कि आप ये थोड़े थोड़े ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें एंड किसी की पिक्चर लेकर उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, सो यू विल फाइंड आउट कि ये कितना इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स आपको देना शुरू कर देगा। ठीक है जी, लेट्स सपोज मैं समथिंग लाइक दिस, ओके, एंड नाउ हैव अ लुक एट दिस। Amazing. Okay, G. So let's not do this anything more. Let's not do this. It's not good. ठीक है जी. So let's get back to the serious things. Okay. So that is it for today. I'm pretty sure कि ये दो different experiments जो आज हमने किए, ये आप लोग जरूर experiment करो. और let me show you another thing which I just want to create a new documents, and whatever that is 1000 by something like this, एक नया document create करके एक चीज और मैं आप लोगों से शेयर करता जाऊं, and that is just mouse drag, nothing else, just picture, just इसको पिक किया एंड माउस से ड्रैग करना शुरू कर दिया, लेकिन कीप इन माइंड के जो सेंटर पॉइंट होगा ना, ड्रैग उससे स्टार्ट होगा, बस दैट्स द हैक। ओके, चलें जी, एक और इम्पोर्टेंट टूल जो आप लोगों से डिस्कस करना है, दैट इज दिस इम्पोर्टेंट टूल, फॉर एग्जांपल rectangle tool, rounded, ellipse tool, and polygon tool, and line tool. What is the difference between all these and this? ये है अगला टॉपिक जो कि हम जल्दी से आज ही इसको भी कवर कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव स्टिल हैव अबाउट 8 to 10 minutes more. सो यहाँ से बेसिकली क्या होता है, लेट्स क्रिएट अ न्यू लेयर फर्स्ट. This will create a selection first and then you make something fill in inside. Okay, this is marquee tool, rectangle marquee tool या elliptical या circle means आप इन दोनों टूल से first you have to create the selection sort of thing and then उसके बाद आप experiment करते हैं. But if you are interested in the shapes, direct shapes, so this is something called rectangle tool, rounded tool, and variety of other tools. For example, rectangle tool आप pick करें, so what will it this do? ये आपके लिए पूरी एक शेप क्रिएट कर देगा straight away.
जो भी कलर यहाँ से लेट्स सपोज सिलेक्टेड है, द येलो वन वाज सिलेक्टेड, सो येलो के बजाय अब हम थोड़ा सा इसको डार्कन में सेलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट्स क्रिएट दिस शेप अगेन एंड हियर वी गो, करेक्ट, ग्रीनिश सॉर्ट ऑफ थिंग, सॉर्ट ऑफ कलर जो कि ऑलरेडी इसमें अप्लाई हो चुका है. मोर ओवर, the interesting tool about the interesting thing about this tool is कि ये ऑटोमेटिकली उसके साथ उसका शेप भी क्रिएट कर देगा, दैट इज वेक्टर मास्क, या उसका काइंड ऑफ पेन टूल से जिस तरह आप पाथ क्रिएट होता है, ये बिल्कुल वैसे ही क्लिक कर होता है. नाउ इफ यू क्लिक ऑन दिस एंड देयर इज अ कंप्लीट सिलेक्शन बिल्कुल वैसे ही, सो दैट इज अनदर एडवांटेज. अब हम क्लियर, आई एम नॉट श्योर what does this mean. uh, Iman, Murad, I don't know what does this mean. Colors, yes, absolutely. Color is something which you can very easily do. जो भी कलर यहाँ से पिक करना चाहो, जो भी कलर पिक करो, ओके करो, और उसके बाद पेंट बकेट टूल से जाके इसमें अप्लाई कर दो. ओके, लेयर्स ये एंड लेयर्स, जो भी आप करना चाहो. मैं बेसिकली आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. क्लियर? ओके, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू लेयर फर्स्ट. एंड इंटरेस्टिंग, आज एक और धमाकेदार चीज आपको बतानी है, दैट इज द राउंडेड रेक्टेंगल. मैं इस प्ले को थोड़ी सी देर ऑफ करता हूँ एंड हैव अ लुक एट दिस. ये शेप आप इधर से नहीं बना सकते. राउंडेड जो इसके सर्कल्स है ना, ये आप उधर से नहीं बना सकते. ठीक है, दोबारा इस पर क्लिक, कंट्रोल की क्लिक करें, और अब जो भी कलर इसमें चेंज करना चाहें, जो भी इसको करना चाहें, यू कैन वेरी इजीली डू दिस. मूव करना चाहें एंड सिलेक्शन को मूव करना चाहें, दैट इज सेपरेट. एंड कंट्रोल की से दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट करना चाहें तो आप तब भी मूव कर सकते हैं. विद द कंट्रोल की इन द सेंटर दोनों चीजें मूव होंगी, मींस फिल्ड कलर भी और इसका टोटल सिलेक्शन भी. और अगर कंट्रोल की के अलावा आप इसको मूव करेंगे, सो जस्ट दिस सिलेक्शन वुड बी मूव्ड, सो दैट के आप यहाँ पे कुछ और प्लेस करना चाहते हैं तो दैट इज समथिंग विच यू कैन वेरी इजीली क्रिएट. फॉर एग्जांपल मैं दोबारा आल्ट प्लस बैक स्पेस लेकिन विद द न्यू लेयर करता हूँ, तो ये एक और शेप के अंदर, एक सिलेक्शन के अंदर एक कंट्रोल डी करना था इसमें. ठीक है, सो ये दो शेप्स क्रिएट हो गई. सो जल्दी जल्दी में लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज एज यू नो सर्कल टूल. अगर शिफ्ट की के साथ करेंगे तो हॉरिजॉन्टली के एंड वर्टिकली दैट और इक्वल बिल्कुल. और अगर आप इसके अलावा अंडू एंड इसके अलावा करते हैं तो कोई भी शेप आप इस तरीके से या इस तरीके से आप या इस तरीके से आप कोई भी शेप आप क्रिएट करना चाहें किसी भी शेप की तरह की, वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन जितनी दफ़ा आप क्लिक करते जाएंगे उतनी दफ़ा एक एक नई नई लेयर्स बनती जाएंगी. सो लेट मी सेलेक्ट ऑल दिस, शिफ्ट की के साथ सारी सेलेक्ट एंड डिलीट दिस वन, because the aim is just to give you the overall idea. अच्छा जी, polygonal tool क्या करता है? Of course, which is quite obvious कि ये देखें, किसी भी शेप में आप बनाना चाहें, आप इसके एंगल्स अगर आप पहले से डिसाइड करना चाहते हैं, वी जस्ट वांट के इंस्टेड ऑफ 10 दिस शुड बी 5. सो आप जल्दी से माउस के साथ मैनुअली भी, और अगर माउस के साथ मैनुअली नहीं तो आप जिस भी एंगल पे करना चाहें आप ये शेप बनाएंगे, ऑटोमेटिकली ये शेप बन जाएगी. ठीक है, इसके बाद दूसरी शेप, इसके बाद तीसरी शेप, इसके बाद चौथी शेप, सबको अलग अलग कलर देते जाए एंड इंटरेस्टिंग एक से एक नई से नई शेप बनती जाए. करेक्ट. सो यहाँ तक तो हो गया. लाइन टूल क्या करता है? लाइन टूल बाई क्वाइट ऑब्वियस, लाइन से लाइन क्रिएट होती है, नथिंग, उसमें कुछ बताने वाली कुछ मुश्किल चीज है ही नहीं. जस्ट मल्टीपल लाइंस इधर से इधर, इधर से इधर क्रिएट करना चाहिए तो जस्ट ये देखें, जिस येलो उसमें कलर फील्ड येलो है, इसमें भी कलर फील्ड येलो आ जाएगा. आप इसके अलावा इस लेयर में किसी जगह पे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली आपको दो लाइंस क्लैरिटी से नजर आ जाएगी. ओके, लेकिन my aim and objective and the last thing which I wanted to tell you is the custom shape. आज आपके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया फोटोशॉप की ओपन होने जा रही है जो आज तक आपको आइडिया नहीं है कि क्या कुछ उसमें हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप इस पर क्लिक करें एंड इस पर क्लिक करने बल्कि नहीं, शेप्स, चूंकि आपने कस्टम शेप्स पे क्लिक किया तो जस्ट शेप्स पे क्लिक करें एंड हैव अ लुक एट दिस. नाउ कोई शेप यहाँ से पिक करें और यहाँ पे बनाते जाएं शेप्स. ओके, एंड सच एन अमेजिंग थिंग, आप इसका बैकग्राउंड कोई लगाएं ग्रीनिश सा एंड देन उसके बाद देखें कितनी खूबसूरत एलिगेंट चीज़ें ये बनना शुरू हो जाएंगी.
करेक्ट। आप इसके अलावा आप कोई चीज़ और कोई ऐसा स्पेसिफिक टूल आप जस्ट पिक करें और इसका कलर कोई और करते जाएं। अभी क्योंकि कलर ये वाला है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, सो लेट सपोज आप यही वाला कलर अप्लाई करेंगे तो अब इसमें येलो आना शुरू हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। मैंने एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली उसी के बैकग्राउंड लेयर के ऊपर कर दिया। इफ़ आई एम इंटरेस्टेड तो मैं यहाँ से नई लेयर क्रिएट करूँगा और उसमें ये चीज़ फिट करूँगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग जाके इन सारी की सारी चीज़ों को आपने वन बाय वन करना है एक्सपेरिमेंट। आई हैड अ प्लान टू टेल यू दिस ऑल टुमारो, लेकिन लेट मी डू दिस टुडे सो दैट कि कल से हम बिल्कुल इंटायरली बिल्कुल नई चीज़ स्टार्ट करें और एक नई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, जस्ट द बैकग्राउंड, ओके। एंड लेट्स क्रिएट दिस विद द येलो वन and go to these custom shapes से जाके let's suppose I picked up this one and let me create something like this, okay। and now आप इस पे क्लिक करें and the selected area is now, जो भी आप इसमें कलर देना चाहें, जो कुछ आप इसके साथ करना चाहें आप कर सकते हैं, sky is the limits, ठीक है ना। let's suppose the selected area is color is this, और मैं control plus backspace, लेकिन first have to create a new layer और उसके बाद control plus backspace से red color इसमें fill कर दिया, okay। now further again go to these channels and कोई नई से नई चीज़ आप यहाँ से अंडरस्टैंड करके कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन वेरी इजिली क्रिएट। लेट्स सपोज मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ, लेट्स क्रिएट अगेन अ न्यू लेयर, गो टू कस्टम शेप टूल, यहाँ से शेप्स को पिक करने के बाद आप इनमें से कोई शेप पिक करें, लेट्स सपोज दिस साइकिल and let's create something like this, just on single click everything is furnished, करेक्ट। सो अगर आपके पास ये शेप्स नहीं है या अगर आप चाहते हैं कि ये शेप्स आपको मिल जाए, गो टू दिस एरो की, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यू फाइंड आउट कि इतने ज़्यादा एनिमल्स एंड अपेंड करने से इसी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे नीचे, ये देखें। एंड लेट्स सपोज रैबिट एंड समथिंग लाइक दिस, एंड रैबिट के अलावा plenty of other things like falcon, maybe something like कुछ ऐसी चीज़, ठीक है। एंड आप कोई चीज़ क्रिएट करें, कोई एनवायरनमेंट, कोई सीनरी क्रिएट करें। आज मैं आपको, यस साद खान प्लीज। सर अगर हम कोई शेप इसमें ऐड करना चाहें कि अपनी तरफ से कर सकते हैं कस्टम शेप्स में? 100% यू हैव टू क्रिएट द शेप्स, लेकिन डू नॉट गो टू दैट लेवल। फर्स्ट के पीएचडी की डिग्री आप फोटोशॉप में ले लें, फर्स्ट डू दीज थिंग्स जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। आई वुड रिक्वेस्ट कि मैं आज आपसे एक ट्रेनिंग वीडियो भी शेयर करूंगा जिसके थ्रू जाके आपने उसकी कॉपी नहीं बनानी, बट यू हैव टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस इन्वायरमेंट जो कि वीडियो में बनाया गया है, बिल्कुल वैसे ही आपने क्रिएट करना है एंड स्टेप बाय स्टेप उसमें क्रिएट करते जाएं और उसमें ये सारे के सारी कस्टम शेप्स में से जो आपकी चॉइस है, जो आप बनाना चाहते हैं वो आप उसमें से चूज कर, करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल आप इनमें से कोई नेचुरल एनवायरनमेंट, कोई नेचुरल सीनरी बनाना चाहते हैं, इट इज जस्ट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएं। लेकिन बीइंग डिजाइनर, अब द माइंड, आपका माइंड दैट शुड वर्क आउट, दैट शुड कम आउट एंड थोड़ा सा उसे वर्किंग करनी चाहिए। दैट इज समथिंग विच इज टुडेज लेक्चर। कल से हमारा मोस्ट प्रोबेबली टुमारो व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि हम थोड़ा सा असाइनमेंट्स की तरफ भी जाएं। यस 100% आप एवरीथिंग यू कैन रीसाइज। फॉर एग्जांपल आपने लेट सपोज मूव टूल से इसको पकड़ा ना, तो यू कैन डू इज कंट्रोल टी इज फॉर ट्रांसफॉर्म। आप चाहें तो इसको छोटा कर दें, ठीक है, और चाहें तो इसकी कॉपी बना लें, चाहें तो इसको फुल स्क्रीन कर दें, जो भी आप करना चाहते हैं, जिधर भी आप लगाना चाहते हैं, यू कैन डू इट एवरीथिंग, ठीक, परफेक्ट। सो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। सो इनमें से जो भी आप चॉइस इज योर्स, क्रिएटिविटी हैज टू कम आउट। ये देखो टूल्स की हद तक इसको अंडरस्टैंड करना इट इज कंपैरेटिवली सिंपल, लेकिन टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, दैट इज समथिंग एवरीवन्स माइंड या उसके दिमाग की में से जो ग्राफिक डिजाइनर जागेगा, वो जो जो कुछ क्रिएट करेगा ना वंडर्स, उससे पता लगेगा कि कौन कितना अच्छा है, राइट।
So that's it, dear students. Thank you very much. Is there any confusion, any questions so far from anyone? I would request please raise your hand so that कि हम just 1 minute पे discuss कर सकें, and then we will move to our next chapters. All right, so that means we are done. Yes, Zareen, please. Zareen Taj, go ahead. You have unmuted yourself. No, nothing. That was a mistake. Okay. Anyway, no problem. So, dear students, thank you very much for joining me today's session. It is indeed a pleasure and honors to have